चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में द एनिमी। हम इसको थोड़ा फास्ट रखेंगे एंड कोशिश करते हैं कि हम आधी स्टोरी कर लें विद इन हाफ एन आवर ओनली। ठीक है, यूजुअली इसको करने में मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट येस लेट्स ट्राई राइट। डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on the spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. So in the story The Enemy, which is written by Pearl S. Burke, you have to understand that there is a person with the name Dr. Sadao Hoki, right? So he was living there. His house was built on the spot of the Japanese coast, right? On the Japanese coast, Dr. Sadao's Hoki's house was there, right? And he had been living there since his childhood days. And as a little boy, he used to often play at the Japanese coast where his house was there, right? And his house was like what? It was a square stone house. That means the house was made up of stone and it was a square in shape. It was a square stone house. Low square stone house was set upon the rocks well above a narrow beach. So you have to understand that कि वहाँ पर एक narrow beach है जिसके आसपास pines है. It was outlined by pines. What narrow beach है जिसके आसपास हर जगह पर pines है. ठीक है. एंड थोड़ा सा ऊपर जाके मीन्स वहां पर था ना पौड़ियां चढ़ के सीढ़ियां चढ़ के. ठीक है. एक स्क्वायर स्टोन हाउस था. ठीक है. अबव द नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड बाय बेंड pinches नहीं pines. Okay, so this is very important for you to understand here. गेट दैट. तो यहाँ पे उन्होंने उसके घर की लोकेशन बताई है कि डॉक्टर सदाओ होकी जी का जो घर है दैट इज ऑन द जापानीज कोस्ट, अ लो स्क्वायर स्टोन हाउस. इट वाज अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद द बेंट पाइन्स. इट वाज आउटलाइंड विद व्हाट? इट वाज आउटलाइंड विद बेंट pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare foot, right? And along with that, you have to understand that from where did he get the idea to climb the pine with his bare feet? By seeing the people in the South Seas when they climbed for the coconuts. ठीक है. जब साउथ के सीज में ही यूज टू सी दैट कि पीपल दे क्लाइम ऑन द ट्रीज फॉर द सेक ऑफ द कोकोनट्स एंड ही वॉज ट्राइंग टू डू लाइक दैम बाय क्लाइंबिंग ऑन द पाइन ट्रीज, राइट, विद द बेयर फीट, राइट. तो उसके फादर ने उसको बोला दोस आइलैंड्स यॉन्डर दे आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान. तो वो कहते हैं कि वो आप देख रहे हो बच्चा आइलैंड्स, अगर हम स्टेपिंग स्टोन मीन्स अगर हम इनमें कदम रखते हैं तो ये हमारे जापान का फ्यूचर है. हमें नहीं पता कैसे फ्यूचर है. इवन डॉक्टर सदाओ होकी जो अब डॉक्टर है तब तो बच्चा ही था, तो वो कहते हैं मतलब यहाँ से जाके हम कहाँ पर जाएंगे. तो फादर भी वो उनके पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है. वो कहते हैं हु नोज, मतलब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे. मे बी ही हैज समथिंग इन हिज माइंड, वी डोंट नो. ठीक है. आई एम सॉरी. Now Sadao knew that his father never joked or played with him, but he had suffered from infinite pains for his son, right? To educate his son, he has worked hard all his life, and education was his father's chief concern, and therefore he sent his son at the age of 22 to America to learn about surgery and also medicine, right? He had come back at 30. अब वो 8 years के बाद में he came back, and before his father died he made his father proud by becoming not only a surgeon but also a great scientist, right? And he was not sent abroad with the troops. आर्मी के साथ में उसे अब्रोड नहीं भेजा गया था because he was doing a discovery. किस चीज़ पे वो डिस्कवरी कर रहा था? डिस्कवरी ऑफ क्लीनिंग ऑफ क्लीनिंग द वुंड्स इंटायरली. अपनी उनकी किसी के वुंड हो जाए है ना तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करने का तरीका वो ढूंढ रहा था.
एंड उसके साथ में देयर वाज सम ओल्ड जनरल, आर्मी में ही होते हैं जनरल, तो ही माइट नीड अ सर्जरी एट एनी टाइम एंड that has to be operated by Dr. Sadao. ठीक है, तो he was not sent abroad with the troops and was kept in the Japan only. And now he says that because of the unexpected warmth of the past few days, कुछ दिनों से बहुत गर्मी हो जाने के कारण में अब क्लाउड्स बन रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ? जब बहुत कम गर्मी होती है वाटर इवेपोरेट करते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. ठीक है, clouds were rising from the ocean now. Unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold wave. तो बेसिकली हीट जो है जब ज़्यादा देर रहती है तो फिर ठंड आती है. ये जोग्राफिकल फिनोमिना है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज at the time of the night it had drawn heavy fog from the cold waves. It had drawn heavy fog from the cold waves. तो जो वहाँ पे जो था कोस्ट था जहाँ पे वो रह रहे थे, तो वहाँ पर जो पानी था, ओशन था, पूरा का पूरा बीच था बेसिकली, वहाँ की कोल्ड वेव से that warmth of the past few days had drawn a heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist high. So what was Sadao observing? He was observing that the heavy fog that has been attracted from the cold waves because of the unexpected warmth of the past few days. Sadao watched the mist hide outlines of a little island. So basically, Sadao, what did he observe? He observed that the mist was covering the little island near the shore, and then it came up covering the pine trees, and slowly it would also surround his house. And then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with two children, right? तो वो क्या बोलता है कि काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी एंड इस वजह से रात में इट हैड ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम दी कोल्ड वेव्स. एंड व्हाट वाज सदाओ ऑब्जर्विंग? दैट द मिस्ट हैड आउटलाइंड अ लिटिल आइलैंड एंड देन इट कम अप creeping the beach below the house and then around the pines, and slowly it would cover their house as well. But at this moment what happened? The door opened and she looked out. ठीक है, so basically his wife came out in the veranda, and what was she wearing? She was wearing a dark blue woolen हाउडी ओवर हर किमोनो. सो उसने अंडर क्या डाला हुआ था? जैसे हम शर्ट के ऊपर जैकेट डाल लेते हैं, तो जापानीज में शी वॉज वेयरिंग अ kimono, and on the top of it she was wearing a dark blue woolen haori. ठीक है, तो ये दो आप याद रख लेना. इट इज जस्ट द गारमेंट्स दैट वी वियर, ओके, इन जापान. Kimono and haori. Get that? She came to him affectionately and put her arms through his arms. उसकी arms में उसने अपनी arms डाल दी. ठीक है, and she simply stood there, and both of them stood there, and Dr. Sadao, he smiled at her and said nothing, right? And then the author goes on to tell us that he had met Hannah in the most casual manner. बहुत casually वो उससे मिले थे. कहाँ पर मिले थे? अमेरिका में मिले थे. But he waited to fall in love until he was sure that she was Japanese. जब तक वो श्योर नहीं था कि वो जैपनीज है, उसने उसके साथ में प्यार नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर जो हैं would never receive unless she had been pure in her race. Pure in her race मतलब फादर भी मदर भी सब जापानीज ही होने चाहिए. ठीक है, तो met her in the most casual manner. One day he was basically invited by the American professors and his wife, but and there they had also invited Hannah.
ठीक है. So basically, who was the professor? The professor was Harley and his wife. So basically, he thought that he would not go to his professor Harley's wife house, basically, because the rooms were very small and the food was also not tasty. That means it was bad. And professor's wife was voluble. Voluble means उसकी wife जो थी वो काफी ज्यादा टॉकेटिव थी एंड उसे वो चीज इरिटेटेड लगती थी. बट फिर भी वो अपना, क्योंकि प्रोफेसर हार्ली ने उसको इतने प्यार से बुलाया था, तो वो जाता ही है उनका मन रखने के लिए. दो ही न्यू दैट रूम्स वर स्मॉल, फूड वाज बैड, प्रोफेसर्स वाइफ वाज वॉल्यूबल, राइट. बट ही हैड गॉन देयर एंड then there he saw Henna, right. वहां पे वो हैना को मिला and he thought that he would love her if she was a pure, if she would pure in race, right. And now he felt her hand on his arm, क्योंकि आपको पता है कि उसने उसकी आर्म्स के बीच में अपनी आर्म्स डाल रखी थी और उसके बाद में वो हैंड रखती है. सो ही फील्स हर हैंड on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married in a years, in a बहुत साल हो गए उनकी शादी हुए को, but still me there is so much of love between them, right. And they had not married in America only, ऐसा कुछ नहीं था. They had not married in hurry, right. They finished their work in the school, completed their education, and when his father and went to Japan, and their father, right, they had arranged their marriage in the old Japanese way, and they both were very happy because they have planned everything beforehand and they were very much in love with each other, right. And now what they see that both of them saw something black was coming out of the mist. ऐसा लग रहा है जैसे किसी की परछाई बाहर आ रही होती है. And he says that it was a man, right. ऐसा लग रहा था ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, कि वो ओशन में डूबा हुआ था एंड वो वहाँ से किसी भी तरह से स्विम करके बाहर निकला है, ठीक है. एंड नाउ ही मूव्ड अ लिटिल स्टेप एंड जो है वो वहाँ पे गिर जाता है. तो हैना क्राइड, हु इज दैट. एंड उसने सदाओ की आम छोड़ी एंड वो जाकर रेलिंग पे जाकर देखने लगी कि कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो. नाउ दे सॉ हिम अगेन, वो दोबारा दिखता है. एक बार वो गिर गया था, ठीक है. द मैन वॉज ऑन हिज नीज एंड आर्म्स एंड वॉज क्रॉलिंग, राइट. एंड सदाओ सेज दैट ही वॉज प्रोबेबली अ फिशरमैन, राइट, हु हैज वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट एंड देन ही ran down quickly, considering him as a fisherman. And behind him Hannah also came, and her sleeves were very wide, right, and they were flying when she was running, right. एंड ही सेज दैट, कि हमें बताते हैं वो कि 2 माइल की दूरी तक तो वहाँ पर 2 माइल तक तो कुछ भी नहीं था. उसके बाद में फिशिंग विलेजेस थे, ठीक है. एंड जहाँ पर वो रहते थे वहाँ कोई नहीं रहता था. इट वॉज अ लोनली कोस्ट एंड डेंजरस विद रोक्स, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नोखीले रोक्स थे जहाँ से वो निकल कर आया था ओशन की बाउंड्री पर, ठीक है. somehow the man had managed to come through them, he must be badly torn. तो उसे लगता है कि वो कितनी मुश्किल से वहां से निकला है एंड उसको बहुत ज्यादा चोट जो है वो आई होगी, ठीक है. They saw when they came toward him, and what did he observe कि जहाँ पर वो लेटा हुआ है ना, there is a stain of red, मतलब खून आ रहा है उसको. And Sadao exclaimed that he is wounded, and वो दूर से देख लेता है, and then he runs towards the man, and his face was in the sand, and you know what happened, he was wearing the wet rags, right. And Sadao stopped. Henna was also standing there. They turned the man's head, right, and they saw the face, and it was a white man. And meanwhile what happened, the wet cap that he was wearing, the cap that stuck to his head, also fell away, and there they saw his wet yellow hair, right. And it seems as if he had not cut his hair from weeks, and upon his, and you know, he also had a rough yellow beard, and his face looked
and his face was very young and was also tortured. ऐसा लगा उसके साथ में बहुत torture हो रहा है. He was unconscious and knew nothing that they did for him. जो वो इंसान था वो unconscious सा, consciousness में नहीं था. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि this was the moment when they saw that something black was coming out of the mist, and he says that a man, that someone has flung from the ocean, right? And Sadao says that maybe it is someone from the, maybe it's some fisherman who had washed from his boat, right? And he ran quickly down steps, right? And his wife also ran along with him. And he says that कि यहाँ पर तो सिर्फ एक लोनली कोस्ट ही है. इस टाइम पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं. And this man has managed, the beach was spiked with the rocks. There were rocks, spiked rocks all around the beach, and somehow this man had managed to come through them. And he says that he must be badly torn, right? And he was actually wounded. And how did they come to know that? Because the sand on one side, it had a stain of red, right? So yes, now what happened, his mouth was in the soil and the cap stuck his hair. And then they turned the person and they saw his face, it was a white man, and the cap also fell away, and his hair were yellow, in wet yellow hair, and they were long as though it had not been cut since 2 weeks, and for many weeks, not 2 weeks. And his face looked very much young. And also it seems that this person has been tortured a lot, right? And he was unconscious, and his beard was also very rough, and it was yellow in color like his hair on the head. अब जो सदाव ने कुछ टाइम के पहले उसने देखा था कि रेड स्टेन था फ्लोर के ऊपर, उसे वो याद आता है. एंड सिंस ही वॉज अ वेरी फेमस सर्जन, तो वो अपनी फिंगर्स को उसकी बॉडी के ऊपर सर्च करता है. एंड देन ही फील्स कि यहाँ से खून आ रहा है. कहाँ से आ रहा होता है? ऑन राइट साइड ऑफ द लोअर बैक, वहाँ से खून आ रहा होता है. एंड वो फील करता है कि यहाँ पर जो है ना फ्लैश जो है ना, इट इज ब्लैकेंड विद द ब्लैक पाउडर. फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद द पाउडर, जैसे उसे वो बेसिकली गन पाउडर था. ठीक है, तो कहता है सदाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन. मतलब कुछ टाइम पहले इसको गन की शॉट लगा था, बट इसका उस चीज़ का कोई भी केयर नहीं किया गया है. इट हैड नॉट बीन टेंडेड, इट हैड नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, एंड अनफॉर्चुनेटली दीज spiky stones have opened the gun wound only, जो कुछ ही दिन पहले लगा था. ठीक है, not many days ago the man had been, और गोली अभी भी उसके अंदर थी इसलिए ब्लैक पाउडर दिख रहा था, had not been tended. It was a bad chance that the rock had struck the wound, and वो रोक ने उसी जो जहाँ पे उसको चोट आई थी वहीं पर ही स्ट्रक किया था. तो है ना, विस्पर्ड अगेन, ओ हाउ इज ही ब्लीडिंग, इतना खून आ रहा है. ठीक है, एंड वो सेफ थे क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि वो अमेरिकन्स था. एंड अमेरिकन्स जो है वो जापानीज के दुश्मन होते हैं. ठीक है, बट वो बीइंग अ सर्जन अपनी ड्यूटी कर रहा था. ठीक है, जितना भी वो कर पा रहा था, बट उन्हें कहीं ना कहीं डर था. बट दे वर लिटिल बिट कंफर्टेबल ऑल्सो कि हर जगह पर धुंध ही धुंध है, मिस्ट वॉज सराउंडिंग देम कंप्लीटली, एंड नो वन वुड बी एबल टू सी देम. एंड मोर ओवर, एंड ऑल द फिशरमैन दे हैड गॉन होम, एंड देर इज नॉट इवन एनी चांस ऑफ द बीच कॉम्बर्स. बीच कॉम्बर्स क्या होते हैं? जो बीच के आसपास चीज़ें पड़ी उनमें से कुछ अगर काम का होता है उसको बेच के पैसे कमा के अपना खर्च चलाते हैं. तो कहते हैं इस टाइम पर दे वर लिटिल सेफ because mist has covered them completely. Fishermen had all gone to their home, and beachcombers would also not come at this moment, right? And now Sadao thinks that what shall we do to this person, right? And they both were fearing so much, right? And in the meanwhile, since he was surgeon, his hands were expert, he covered the wound with the sea moss that strewed the beach, right? That means वहां पर हमारे क्या थे बच्चे? sea moss थे. क्या थे? sea moss.
जो बीच पर खिलरे हुए थे हर जगह पर, द सी मॉस वर स्प्रेड एंड ही कवर्ड हिज वूंड विद द सी मॉस दैट वाज स्ट्रूड ऑन द बीच. एंड नाउ सदाव हिमसेल्फ टोल्ड दैट कि आई थिंक वी शुड थ्रो हिम इनटू द बैक इनटू द सी, है ना. एंड सिंस हिज ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ पुटिंग ऑफ दैट सी मॉस ऑन द वुंड, ही गॉट अप, डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड एंड खड़ा हो जाता है वो. एंड वो भी लेटा हुआ जिसको चोट आई है. तो है ना कहती है हाँ आप सही बोल रहे हो, हमें इसको ओशन में दोबारा से, सी में दोबारा से फेंक देना चाहिए बिकॉज ये अमेरिकन है. ठीक है, अगर हम इसको अपने घर पे रखेंगे तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, अगर हम इसको प्रेजेंट में दे देंगे तो ये तो फिर भी मर ही जाने वाला है प्रेजेंट में जाकर भी. ठीक है, तो काइंडेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात क्या होगी, सबसे बढ़िया बात होगी हम इसको दोबारा से ओशन में छोड़, ना हम फंसेंगे ना ये मरेगा, है ना. मतलब वो अपने बारे में थोड़ा सोच रहे थे. ठीक है, अच्छी बात है, तो अपने बारे में सोचना चाहिए, बट वो डरे हुए थे कहीं ना कहीं, है ना, तो इसलिए वो बोल रहे थे, इस तरह से बातें कर रहे थे वो, है ना. हैना सेड बट नीदर ऑफ देम मूव, मतलब हैना ने बोला हाँ ठीक है हम इसको सी में दोबारा फेंक देते हैं, बट किसी में से भी, दोनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी उसको उठा के पानी में फेंक देने की. एंड दे वर स्टेयरिंग एट दैट बॉडी, राइट. तो हैना विस्पर्ड क्या है ये, व्हाट इज ही, है ना, कहाँ से आ गया ये. ठीक है, कहता अमेरिकन है ये बंदा. एंड वो क्या करता है बच्चे, वो उसकी कैप को उठाता है. ही टुक अप हिज कैप एंड देयर ही सॉ दैट अ सेलर ऑफ फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, मतलब उसकी कैप के ऊपर फेंटेड लेटर में लिखा हुआ था US Navy. A sailor was US Navy and a sailor was written on his faint cap. And then he understood that कि जब ये हार गए थे अमेरिकन, तो जापानीज ने इन्हें प्रिजन कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, और अब ये वहां से भाग कर आ गया है ओशन, ये सी के थ्रू, है ना. तो है ना क्राइड सॉफ्टली ही हैज एस्केप्ड एंड दैट इज वाई, कि ऐसे अटपटे से रास्ते से आया है एस्केप होकर, दैट इज वाई ही इज वुंडेड badly. They hesitated looking at each other, है ना. तो कहते कि क्या मतलब, चलो यार अब इसको सी में फेंक देते हैं. तो सदाव बोलता है कि मैं तो कर देता हूँ, चलो तुम भी मेरा साथ दो, है ना. कहते हैं नहीं मैं नहीं, तुम करो, है ना. तो सदाव अकेला नहीं करना चाहता, कहते हम दोनों करेंगे. ठीक है. इफ द मैन वर हॉल आई कुड टर्न हिम ओवर टू पुलिस विदाउट, कहता अगर मैन सही होता ना मैं इसको पुलिस में दे भी देता, है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आफ्टर ऑल ही इज माई एनिमी. ठीक है, एंड ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी. ठीक है, एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो एंड यू सी हाउ फुलिश हिज फेसेस. अपने आप को बोलता है कि अरे कितना फालतू फेस है इसका, कितना फुलिश फेस है ना. बट क्योंकि ये वुंडेड है इसलिए मैं इसको पुलिस के पास में नहीं दे रहा हूँ. ठीक है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम, कहते तुम भी नहीं फिर फेंक सकते इसको सी में के अंदर. कहते चलो फिर हम इसको घर पे ले चलते हैं. कहते सर्वेंट्स बोलेंगे, सर्वेंट्स व्हाट विल सर्वेंट्स से, है ना. कहते वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंडेड टू गिव देम टू पुलिस एंड वी मस्ट थिंक, कहते कि हमने तो यही सोचा था कि हम इसको पुलिस के पास में छोड़ देंगे, बट सिंस ही वॉज इंजर्ड दे डिड नॉट सेंड हिम. एंड वो बोलता है वी मस्ट, सदाव सेज दैट वी मस्ट सिंपली टेल देम वी इंटेंड टू गिव देम टू पुलिस एज इंडीड वी मस्ट. सदाव तो है ना बोल रही है ये, है ना बोल रही है कि सदाव मतलब हम उनको सिंपली बोल देंगे कि हम इसको पुलिस को देने वाले हैं एंड ये हमारी ड्यूटी है इसको पुलिस को देना, है ना, क्योंकि हमें अपने बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है ना. इफ वी कीप इट हिम एट द होम एंड ट्राई टू सेव हिम, ट्राई टू रेस्क्यू हिम, देन वी ऑल वुड बी इन डेंजर. ओके, if we don't give this man over a prisoner of war then we would all in danger. Sadav said okay surely, है ना. तो कहते चलो ठीक है एक बार घर ले जाते हैं, ठीक हो जाता तो we'll just give it to police, right. Together they lifted the man, है ना, दोनों ने उस मैन को उठाया. ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था, ऐसा लग रहा था कि ही हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से उसने कुछ नहीं खाया है. एंड ऐसा लगता है जैसे उसने किसी होते ना, हैन होती है ना, इसके बाद सिर्फ फेदर होते हैं, स्केल्टन होते हैं, सिर्फ ढांचा सा ही था हल्का सा जो उसको उठा रहे थे. ठीक है. हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप एंड इनटू द साइड डोर. सो बेसिकली
They carried the man towards an empty bedroom, and it was the bedroom of Sadao's father. And since his death, it had not been used. But today they used it, and they laid the man on the matted floor. Matted वहाँ पे मैट्स ही होते थे, जापानीज में बेड्स वगैरह पे या चेयर्स वगैरह नहीं होती हैं, मैट्स होते हैं. ठीक है, एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन चाहे उसको जापानीज चीज़ें बहुत पसंद थी, तो उस कमरे में सब कुछ जापानीज ही था. ठीक है, हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ बेड. तो बेड में भी नहीं कभी वो सोते थे एंड चेयर पे भी कभी नहीं बैठते थे, बिकॉज वो जैपनीज कल्चर में था ही नहीं. ठीक है, एंड हैना ने क्या किया कि शी वेंट टू द वॉल एंड शी basically took out a soft quilt, but she hesitated to give that soft quilt to that person. Why? Because that quilt was very beautiful. It was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. उसकी lining जो थी वो क्या थी? प्योर वाइट सिल्क, एंड उसके ऊपर फ्लावर्ड सिल्क, मतलब फ्लावर्स बने हुए थे. लाइनिंग बहुत सुंदर थी. तो लगता है कि यार वो इंसान बहुत डर्टी है, उसके खून बह रहे हैं, मिट्टी भी इतनी लगी हुई है, मेरा क्विल्ट पूरा खराब हो जाएगा. तो सदाओ बोलता है ठीक है, हम इसको पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको कवर कर लेंगे. ठीक है, कहते अगर तुम इसको गर्म पानी ला के दोगी तो मैं इसको एक बार साफ कर दूंगा. तो बोलती है नहीं, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे. ठीक है, हम सर्वेंट्स को बोल देते हैं, मैं यमी को बोल देती हूँ जो बच्चों का ख्याल रखती थी, दैट वो चिल्ड्रन को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती है एंड इसको आकर साफ कर सकती है. ठीक है, तो सदाओ ने बोला चलो ठीक है, आप यमी को बताइए, मैं दूसरे सर्वेंट्स को बता देता हूँ. ठीक है, the utter pallor of the man unconscious face moved him first to stoop and feel his face. तो उसका जो पेल फेस था उस मैन का जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको देख के उसे डर सा लगता है कि भाई ये मरवर तो नहीं गया. ठीक है, तो उसने देखा, ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट. द हार्ट वॉज अलाइव, मतलब दिल धड़क रहा था, एंड द पल्स वॉज फेड, पल्स भी चल रही थी. ठीक है, तो सदाओ कहता है ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन. कहता मतलब ये मर जाएगा अगर हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे. बट बात ये है कि अगर मैं इसको ऑपरेट कर भी दूंगा, फिर पुलिस के हवाले कर दूंगा, वो भी तो उसको मार ही देंगे. तो हना कहती है नहीं, यू डोंट ट्राई टू सेव हिम. अगर वो जी गया फिर व्हाट इफ ही शुड डाई, कहता अगर मर गया फिर, है ना. तो ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. सो दे वो डिसाइड कर रहे हैं भाई करना क्या, बचाना है या कुछ नहीं करना. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है दैट ही इज अलाइव टिल नाउ, अदरवाइज बाय नाउ ही शुड हैव बीन डेड, है ना. तो डेड बाय नाउ, बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट 20. तो हैना ने पूछा मतलब आपको क्या लगता है कि इसका इतना बुरा हालात है कि ऑपरेशन करते टाइम भी मर सकता है. तो सदाओ कहता है बिल्कुल मर सकता है, बहुत हालात खराब है इसके. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, तो वो हैना आगे से कुछ नहीं बोली, तो सदाओ ने बोला कुछ करना तो पड़ेगा हमें, एंड पहले तो इसको हम साफ करते हैं. एंड वो रूम के बाहर जाता है और हैना उसके पीछे पीछे जाती है, बिकॉज वो वाइट मैन के साथ वहाँ अकेली नहीं कमरे में रहना चाहती थी. एंड जब से वो अमेरिका को छोड़कर आई है उसके बाद से उसने कभी भी नाउ ही सीम टू हैव, बट ये इंसान जो है जिससे वो जानती थी उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है. जापान में वो इसका एनिमी था, चाहे वो फिर जिंदा हो चाहे वो मरा हो. ठीक है, तो हमने एक बारी मैं आपको ये पोर्शन जो है एक बारी और मैं इसको बता देती हूँ, लास्ट के 2 पेज क्विकली 2 मिनट लगा के. ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा कि सदाओ जो है ही स्टार्टेड सर्चिंग विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स दैट फ्रॉम वेयर द ब्लड वाज फ्लोइंग, एंड देन ही ऑब्जर्व दैट द blood was coming from the right side of the lower back and the flesh was blackened with the powder. And not many days ago the man had been shot, and unfortunately rock had struck the wound only, right. And along with that you're supposed to understand that it feels that the man is bleeding and they thinks that what needs to be done. So the first thing they do is Sadao does is put up the sea moss that was spread on the coast and which stopped the bleeding.
and then they thought to put him in the sea, right, both of them. And then they see his cap, where they see that a sailor, basically a US Navy was written, and both hesitated to put them into the water. And then they realized that, so then they thought that they would take him at the because, and there was one more problem now. Even if they would save him, the only option was that either they take him to his home, then they would be arrested, right? And if they keep him in the police station, then they would definitely kill him, and then he would definitely die only, right? The thing was that then they decided, they came to a conclusion that we must simply tell the servants and tell them that we are just keeping the servants for some time only. ठीक है, because he is injured, and we must think of our children or also of ourselves. Otherwise we'll keep him and will not give it to the prisoner of the over as a prisoner of the war, है ना? If we would not give this to the police as a prisoner of the war, then it might endanger their life as well, right? So they lifted that man and they took him to the room of their father's room. Everything was Japanese, and it had his father had never seated in the chair in his own house or slept in a foreign bed. And then what happened, everything was their mat only, laid the man on the matted floor. Everything there had been Japanese, they had not used it since their fathers did, but today they used it. And then she brought the quilt, and that quilt was covered with the flowered silk, and along with that the lining was also of the pure white silk only. So it was flowered silk, and the lining was also the pure white silk. But she feels that he's so dirty, so ask her to get the warm water so that he would clean him. Then she says Yami would clean him, right? कहता है कि he will die if he's operated on, है ना? And he might die even during the operation, because he was in a very bad condition, and he must have the extraordinary strength to survive till now. ठीक है? And after that she says that he was the first American that he saw since the time she had left America. And she had nothing to do with, he had nothing to do with those with whom she has met in America. And here he was her enemy only, a menace, a living or dead, है ना? चाहे वो मरा हो चाहे वो जिंदा हो, वो उनका यहाँ पर दुश्मन ही है, ठीक है? नाउ शी टर्न टू द नर्सरी, नाउ शी टर्न टू द नर्सरी। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है? तो उसके बाद में क्या होता है, गोज टू द यमी एंड आस्क हिम दैट चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, सो शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय which was now nearly 3 months old. And over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth and asked Yummy to come with her. And she told that I will put the baby to bed and then I will come. She went with Yummy into the bedroom that was next to the nursery, stood with the boy in her arms while Yummy spread the sleeping quilts, and she stood with the boy in her arms and laid the baby between them, right? Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen, and these two servants were frightened at what their master had just told them, that there is an American in our house, right? The old gardener, who was also a house servant. So there are basically two servants and Yummy and old gardener, ठीक है? ओल्ड गार्डनर who was also a house servant pulled the few hairs, मतलब he was very much confused that he started pulling the hair on his upper lip. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. तो the old gardener, the house servant जो कि था old gardener, उन्होंने हैना को बोला कि master should not be healing the wound of the white man, because the white man is supposed to die. You know why? Because he was shot by the Japanese army, and Japanese, they want this person to be killed. And along with that, the Japanese sea भी तो जापान का ही तो है ना? That also caught him and wounded him with her rocks, है ना? So if the master will heal him, then the chip
the gun and see they will take revenge on him, right? हाँ जी. I will tell him what you say, है ना, replied courteously. है ना, कहते चलो ठीक है मैं आपको बता दूंगा, बट ये तो सुपरस्टिशन वाली बात होगी ना, अगर हम किसी को सेव करेंगे तो उसको जिस चीज ने खराब किया था, कि जैसे कि गन ने मारा था उसको, तो गन उससे बदला लेगी, या फिर जो सी जिसने उसको हार्म किया था विद द हेल्प ऑफ रॉक्स, वो उसको हार्म करेगी. तो वो उन सुपरस्टिशंस में बिलीव तो नहीं करती थी, बट सिंस वो डरी हुई थी तो वो बिलीव कर लेती है. ठीक है. शी herself was also frightened although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yummy to fetch. And then what did she do? She told Yummy to bring the hot water and bring it to the room where the white man was. Right? She went ahead and set back the partition. Sadao was not yet there. तो यमी वहाँ पे आ जाती है. ठीक है. वो वुडन बकेट जिसमें वो गर्म पानी लाई होती है उसको नीचे रखती है, वाइट मैन के पास जाती है, एंड जब वो उसको देखती है तो वो कहती है आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन एंड वो बहुत डर्टी है, मैं उसको वॉश नहीं करूंगी. तो शी सेज नो, बट है ना, गुस्से में आके बोलती है दैट यू विल हैव टू डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स. बट यमी ने इतना गंदा सा फेस बना लेती है, बहुत गुस्से वाला फेस बना लेती है. शी वॉज लुकिंग वेरी एंग्री एंड हैना वॉज ऑल्सो अफ्रेड दैट अगर उसके सर्वेंट्स कुछ ऐसी वैसी बात रिपोर्ट कर देंगे तो जो हुआ भी नहीं था तो उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी, हो सकता है उन्हें भी पुलिस ले जाए. ठीक है. तो वो बड़े फिर प्यार से उससे बात करती है कि मतलब मेरा तो मतलब सिर्फ इतना ही था कि हम तो इसको बस होश में लाना चाहते हैं ताकि हम इसको दोबारा से प्रिजन में भेज सकें. तो उसको ये बात कंफर्म कर देती है कि हम इसको रखने नहीं वाले हैं, हम इसको प्रिजन में भेज देने वाले हैं. ठीक है. तो फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मतलब आई डोंट केयर, है ना, मतलब ये मेरा काम नहीं है ना, दिस इज नॉट माई वर्क, आई वोंट डू दिस, है ना. तो यमी चली जाती है वहां से. ठीक है. मना करके वो वहां से चली जाती है, बट उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है मन ही मन, बट वो शो नहीं करती है बिकॉज उसे डर था कि their servants might complain something that has not even happened, right? And यमी इस बात को लेकर बहुत जिद्दी होती है, स्टबन होती है कि मैं तो नहीं करूंगी भाई, जो भी करना है कर लो. ठीक है. तो स्टूपिड यमी, she muttered fiercely, is this anything but a man and wounded helpless. मतलब ये तो उसको थोड़ी सी चोट तो लगी है, कर देती भला क्या हो जाता, है ना. तो अब क्योंकि उसको बहुत गुस्सा चढ़ा होता था, वो काम वो खुद करने लगती है ना. तो वो क्या करती है, शी अनटाइड द नोटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड. उसके जो कपड़े जो फटे फटे होते हैं तो उसको वो खोलती है, एंड उसकी जो ब्रेस्ट होती है, एंड शी डिप द स्मॉल क्लीन टोवल दैट यमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, द ब्रेस्ट केयरफुली, द मैन्स स्किन दो इट वॉज रफ. कहते क्योंकि एक्सपोजर के कारण उसकी स्किन रफ हो गई थी, बट द स्किन वॉज एक्चुअली ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, इट वॉज अ फाइन टेक्सचर, है ना. एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. एंड जब वो बच्चा था तो इसकी जो स्किन है ये बड़ी फेयर सी होती होगी क्योंकि वो अमेरिकन था, एंड उसकी स्किन को देखकर पता भी चल रहा था. ठीक है. तो वो क्या बोलती है, इन द she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. And when she had this breast bare, she dipped the towel in the steaming hot water, washed the face carefully, and realizes that it was just because of the rough, skin was rough with exposure, and actually it was a fine texture, and it must have been very blonde when he was a child, राइट. बच्चा होता होगा तो इसकी स्किन बहुत अच्छी होती होगी. ठीक है. हाँ. ओके. हाँ. अभी वाइल जब वो ये सब कुछ सोच रही होती है तो दैट ही वाज
really liking the man, better know that he was no longer a child. She kept on washing him until his upper body was clean, and but she dared not. अब उसका डर वापस आ रहा था, अभी तो वो इम्पल्सिव थी, तो उसने उसको साफ कर दिया था, बट शी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, बट वो इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसको घुमा के उसकी बैक भी साफ कर दे। ठीक है, तो वो सदाओ को बुलाती, भाई सदाओ कहाँ है, सदाओ कहाँ है, सदाओ कहाँ है। ठीक है, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, तो उसका जो गुस्सा था वो शांत हो रहा था, एंड उसको दोबारा से डर लगना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, शी क्लीन्ड हर हैंड्स इन द रॉन्ग टॉवल, एंड देन व्हाट हैपेंड, शी ऑल्सो पुट द क्विल्ट ओवर हिम, बिकॉज उसके जो अनटाइड कर दिया था ना उसने रग्स को, हाँ, तो बेसिकली शी हैड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, तो उस वजह से उसको ठंड लग सकती थी, नहीं तो वो ही वुड हैव बीन फ्रीज्ड, इतनी ठंड थी, तो शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। ठीक है, सदाओ शी कॉल सॉफ्टली, सदाओ सदाओ ऐसे करके। ठीक है, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, मतलब जैसे बुला दरवाजे पे खड़ा था, बस आने ही वाला था वो, एंड ही हैड कम विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, एंड she got to know that he had decided to operate that person, and he put the instruments on the sterilized towel upon the floor, and floor के ऊपर उसने रखा। ठीक है, एंड वहां पे उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे, तो उसने बोला फेच टॉवल्स, उसको बोला कि टॉवल्स लेकर आओ, एंड शी वेंट ओबीडियंटली टू द शेल्फ एंड टुक आउट द टॉवल। ठीक है, टॉवल लेके आ गई वो। ठीक है, and she also decided to take some old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, उसको ताकि जो नीचे फ्लोर है उसकी जो कवरिंग है वो खून की वजह से खराब ना हो जाए, उस वजह से वो थोड़े से मैट भी लेकर आ जाती है ना, ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन, सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग। समझ आया? शी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा वेयर वहाँ पे वो जाती है, एंड गार्डनर हैड केप्ट द स्ट्रिप्स ऑफ सम मेटिंग एंड टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट shrubs on the cool nights, so he took some of the mats from there, but by the time she went there she saw that this was useless and the mat was already destroyed, it was ruined, right? And now the Sadao, he commands her to wash her back, and she obeyed him, and sorry, उसने उसको बोला कि help me to turn him, उसको turn करने में help करती है, and then he washes his back, right? यमी वुड नॉट वॉश हिम, तो बीच में बताती है कि यमी ने उसको धोई, एंड सदाओ ने पूछा तुमने क्या इसको वॉश किया है ना, तो उसने बोला हाँ मैंने किया है। ठीक है, बट उसने उसको सुना नहीं क्योंकि वो अपने काम में बहुत लीन था, एंड शी वॉज ऑल्सो यूज टू इट, एंड शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग, मतलब वो सोच रही थी कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि ये अमेरिकन बॉडी पे काम कर रहा है ना, बिकॉज ही वॉज सो मच इन टू हिज प्रोफेशन, ही यूज टू लव हिज प्रोफेशन, उसे फर्क नहीं पड़ता था उसके सामने कौन बैठा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि वो यम्मी से थोड़ा गुस्सा होने के कारण शी बेंट इम्पल्सिवली tied the knotted rugs that kept the white man covered, and then what should they do, clean the face and realize that the skin was of fine texture, called Sadao had come with the emergency, surgeon's emergency bag, and brought some towels, kept the instruments on the sterilized towel, right? Went to the back veranda, took some strips of the matting, but by the time she came, the mat was already ruined by the blood, right? तो वो कहते हैं कि यू विल हैव टू गिव हिम एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, तो कहता है बट मैंने तो आज तक कभी एनेस्थेटिक दिया ही नहीं, तो बड़ी इम्पेशेंट सा होके बोलते हैं एनेस्थेटिक देना बहुत ईजी होता है, तुम दे देना। ठीक है, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, तो वो एनेस्थीसिया के लिए पैकिंग निकाल रहा था, एंड उस टाइम पर ब्लड जो है बहुत तेज़ी से निकलने लगा था, एंड ही सेड दैट द बुलेट वॉज स्टिल देयर, एंड मतलब एंड इट सीम टू हिम दैट दी injury was deep, the bullet was deep inside the skin. ठीक है, the bleeding was not superficial because he has lost so much of blood.
ठीक है. So he was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly and poured into the wound. And what did he realize? That the bullet was still there, and the blood was not superficial, because he had lost so much of blood. And he wonders that how deep this rock wound is, है ना, कि कितना ज़्यादा डीप उसकी बुलेट जो है ना. एट दैट मोमेंट वाइल सीइंग सो मच ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ दैट पर्सनस बॉडी, राइट, द बुलेट वॉज स्टिल देयर, सीइंग दैट, है ना, इतना बड़ा घाव था वहाँ पर. एट दैट मोमेंट, है ना, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. मतलब उसका फेस जो था वो पेल हो गया था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी इतना ब्लड बहता हुआ नहीं देखा था. ठीक है, नहीं देखा था. तो ही सेड शार्पली, डोंट फेंट, डोंट फेंट, तुम ऐसे बेहोश मत हो जाना. ठीक है. बट ही केप्ट डूइंग हिज वर्क ऑल्सो. कहता अगर मैं अभी इस बंदे पे काम नहीं करूंगा ना तो ये पक्का ही मर जाएगा. ठीक है. तो शी क्लैम्प्ड हर हैंड्स टू हर माउथ. उसने अपने माउथ को अपने हैंड से दबा लिया. एंड शी वेंट आउट, एंड आउटसाइड द गार्डन ही वॉज एबल टू हियर हर रेचिंग, हियर हर वॉमिटिंग, यू कैन से. बट ही केप्ट डूइंग हिज वर्क. तो यहाँ पर क्या होता है, when he was taking out the packing, the blood began to flow more quickly, right, peered into the wound with the bright surgeon's light, and wondered how deep the rope would have been. And the bleeding was not superficial, because he had lost so much of blood. At this moment, what happened? Hannah choked. He looked up and saw her color, the color of sulfur, and said that don't fade, he said sharply. But he kept doing his work and was able to hear है ना, vomiting, retching आप बोल सकते हैं, in the garden, right. And he said that कि चलो ठीक है, इसका पेट खाली हो जाएगा तो ना इसको vomiting भी नहीं आएगी. बट वो ये चीज़ भूल गया था कि उसने आज से पहले कभी ऑपरेशन नहीं देखा है. एंड दिस थिंग, एंड her distress and his in मतलब वो वहाँ पे जाके उसकी हेल्प नहीं कर सकता. It made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife, राइट. उसके नीचे जो एक बंदा पड़ा था उसके ऊपर वो अपना सारा वो जो इम्पेशंस है, इरिटेबिलिटी है, सारी उस पर निकालनी स्टार्ट कर देता है. ठीक है. तो आज हम यहीं तक रखते हैं. मैं आपको थोड़ी देर में इसका पार्ट 2 भी जो है प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, दिस इज अ लेंथी स्टोरी थोड़ा सा, बट वील डू इट. थैंक यू सो मच.